ایک شریف نوجوان جسے قدم قدم پر سنگسار کیا گیا۔ ظالم معاشرے کی ناانصافیوں، کرپٹ پولیس اور دولت مند بدماشوں نے اسے بھی ایک غنڈہ بننے پر مجبور کر دیا۔ اور جب ایک شریف انسان جرائم پیشہ بن جائے تو وہ سب غنڈوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک بدقسمت نوجوان جسے جرم کی دلدل نے ایک آتش فشاں بنا دیا۔ بدلے کی آگ میں جلتے ایک شریف نوجوان کی کہانی۔ 1965 کی جنگ پاکستانی قوم کی پہلی آزمائش تھی۔ 6 ستمبر کی شب کبھی نہیں بھلائی جا سکے گی، جب بھارتیوں نے پاکستان کی سرحدوں پر شب خون مارا۔ بھارتی حکمرانوں کا خیال تھا کہ اس کی سینا کے سورما راتوں رات آدھے پاکستان پر قبضہ کر لیں گے۔ یہی پلان بنا کر بھارتی فوج نے چاروں طرف سے پاکستانی سرحدوں پر نقب لگانے کی کوشش کی۔ بھارتی فوج کے جرنیلوں نے تو یہ پروگرام بھی بنایا تھا کہ دوسرے روز شام کو لاہور جمخانہ میں آزادی کا جشن منائیں گے۔ ان جرنیلوں نے بھارت کے وزیروں اور ہزاروں معززین کو لاہور جمخانہ میں شراب نوشی کے دعوت نامے بھی تقسیم کر دیے تھے، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ سوئے ہوئے شیر کو جب جھنجھوڑ کر جگایا جائے تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ پاکستانی سرحدوں پر رات کے اندھیرے میں بھارتی فوجیوں کا حملہ ان سوئے ہوئے شیروں کو جھنجھوڑنے کے مترادف تھا۔ بھارتی جرنیلوں کا لاہور کے جمخانے میں شراب پینے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ رات کے اندھیرے میں وہ چند میل تک پاکستانی سرحدوں میں داخل تو ہو گئے تھے، لیکن صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے ان کی پیش قدمی روک دی گئی۔ پاکستانی قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ وہ ہر محاذ پر اس طرح ڈٹ گئے کہ بھارتی سینا کے سورماؤں کو اپنے جوتے اور دھوتیاں تک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ضلع سیالکوٹ میں چونڈا کے نام کے اس قصبے کو بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن 65 کی جنگ نے اس قصبے کو وہ اعزاز بخشا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کا نام سنہری حروف میں رقم ہوگا۔ پہلے روس کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ اس کے ریگزاروں میں دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی تھی، لیکن چونڈا نے اس کے اس اعزاز کو چھین لیا۔ اس کے سرسبز و شاداب میدانوں میں دنیا کی ٹینکوں کی جو سب سے بڑی جنگ لڑی گئی، اس کی مثال شاید آئندہ صدیوں کی تاریخ بھی پیش نہ کر سکے۔ اس جنگ کے دوران پاکستانی فوج کے جوانوں نے بہادری کے ایسے مظاہرے کیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ دنیا بھر کے فوجی ماہرین نے پاکستانی فوج کو دنیا کی بہترین فوج تسلیم کر لیا۔ فضل الہی کا تعلق بھی چونڈا ہی سے تھا۔ وہ چونڈا کے نواح میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کی چند ایکڑ زمین تھی جو میدان جنگ بن گئی تھی۔ اس محاذ پر پاکستانی فوج کے جوانوں کے علاوہ دیہاتیوں نے بھی جرت اور شجاعت کے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ اس محاذ پر ٹینکوں کی لڑائی عروج پر تھی۔ ہزاروں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں ٹینکوں تلے روندی جا چکی تھیں۔ کئی بستیاں تباہ ہو گئی تھیں۔ بھارتی فوج سول آبادیوں پر بھی بھرپور حملے کر رہی تھی۔ فضل الہی کے گاؤں کے کئی گھر تباہ ہو چکے تھے اور بلاخر ایک گولہ اس کے مکان پر بھی آ کر لگا۔ فضل الہی کی بیوی، بیٹی اور 16 سال کی عمر کا بیٹا شہید ہو گئے۔ اس کا بڑا بیٹا شفاعت علی زخمی ہو گیا۔ اس کی ٹانگ پر بم کا ٹکڑا لگا تھا۔ اس روز بستی کے 3 اور مکانوں پر بھارتی توپوں کے بم گرے تھے، جن سے کئی افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ پاکستانی فوج کے جوانوں نے زخمیوں اور زندہ بچ جانے والوں کو بستی سے نکال کر چونڈا پہنچا دیا، جہاں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد سیالکوٹ کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا۔ یہاں ایک نیا جذبہ دیکھنے میں آیا۔ ہزاروں شہری جنگ میں زخمی ہونے والے سویلین اور فوجیوں کی جانیں بچانے کے لیے خون کے عطیات دے رہے تھے۔ خون کے عطیات دینے کے لیے جو لوگ طویل قطاروں میں کھڑے تھے، ان میں 10 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک شامل تھے۔ اپنے وطن کے محافظوں اور ہم وطنوں سے محبت کا جذبہ انہیں یہاں لے آیا تھا۔ فضل الہی کا بیٹا شفاعت علی ہسپتال میں تھا اور وہ خود کسی کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ شخص اس کا رشتہ دار نہیں تھا۔ اگر کوئی رشتہ دار تھا تو اس سرزمین کی مٹی کا، دین کا۔ سیالکوٹ کے باشندوں نے جنگ سے متاثرین کو کھلے ہاتھوں لیا، انہیں اپنے گھروں میں پناہ دی اور ان کے ساتھ اپنوں جیسا سلوک کیا۔ انہیں غیریت کا احساس نہ ہونے دیا۔ 17 روز کی اس جنگ میں پاکستانی قوم سرخرو ہو کر نکلی تھی اور پاکستانی افواج کے جوانوں نے اپنی بہادری کا سکہ منوا لیا تھا، جبکہ بھارتی سورما اپنے زخم چاٹ رہے تھے۔ شفاعت علی ہسپتال ہی میں تھا۔ اس کی وجہ سے فضل الہی کو بھی شہر میں ہی رہنا پڑا۔ ایک روز جب وہ اپنے گاؤں گیا تو گاؤں کے بہت سے لوگ واپس آ چکے تھے اور ایک نئی ولولہ خیز زندگی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جو مکان بھارتی فوج کی گولہ باری سے منہدم ہو گئے تھے یا انہیں جزوی طور پر نقصان پہنچا تھا، ان کی مرمت ہو رہی تھی اور ٹینکوں سے روندے ہوئے کھیتوں کو اثر نو تیار کیا جا رہا تھا۔ حکومت نے متاثرہ کاشتکاروں اور زمینداروں کو معقول معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ فضل الہی کا ایک بیٹے کے سوا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔
उसने अपने हाथों से अपनी बीवी, बेटी और एक बेटे को दफन किया था। इस गांव से उसका दिल उचाट हो गया। कुछ ही अरसे के बाद उसने अपनी जमीन बेच दी, चंद रोज सियालकोट में रहा, फिर बेटे को लेकर लाहौर आ गया। यहाँ उसे अपना पुराना दोस्त अब्दुर्रहमान मिल गया। अब्दुर्रहमान इसी गांव के एक बड़े जमींदार का बेटा था। उन दोनों का बचपन इकट्ठे ही गुजरा था। अब्दुर्रहमान ने मैट्रिक चविंडा ही से किया था, फिर वो तालीम के सिलसिले में लाहौर आ गया, जबकि फजल इलाही अपने बाप के साथ खेतीबाड़ी में उसका हाथ बटाने लगा। अब्दुर्रहमान अपने बाप के इंतकाल के कुछ ही अरसे के बाद अपनी अराजी बेच दी और लाहौर ही का होकर रह गया। उसने शादी भी यहीं की थी। फजल इलाही जब भी किसी काम के सिलसिले में लाहौर आता, उससे जरूर मिलता। अब्दुर्रहमान हमेशा प्यार और खुलूस से मिला था, और इस मर्तबा तो उसने ज्यादा ही जोश का मुजाहरा किया था। बड़े बेटे शिफात को म्यूं अस्पताल ले जाया गया। उसे अस्पताल में दाखिले की जरूरत नहीं थी, जख्म भर रहा था। डॉक्टरों ने एहतियात के मशवरे के साथ इस्तेमाल के लिए चंद दवाएं भी दे दी। उनकी रिहाइश अब्दुर्रहमान ही के मकान पर थी। 3 महीने गुजर गए। शफात भी अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था। टांग की नसों में खिंचाव की वजह से चाल में जरा सी लंगड़ाहट आ गई थी। एक रात वो सब लोग खाने की मेज पर बैठे थे। खाने के बाद हस्बे मामूल हालात हाजरा पर तबसरे हो रहे थे। इस गुफ्तगू के दौरान मौका पाकर फजल इलाही ने अपने मतलब की बात छेड़ दी। बोला, भाई अब्दुर्रहमान, तुम जिस तरह इस मुश्किल और आड़े वक्त में हमारे काम आए हो, जिस तरह तुम लोगों ने हमें सहारा दिया है, वो एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। लेकिन अब ये भी नहीं हो सकता कि हम जिंदगी भर तुम पर बोझ बने रहें। शफात भी अब माशाल्लाह ठीक हो गया है। मेरे बाजुओं में भी इतनी ताकत ऊद कर आई है कि हम दोनों बाप बेटे मिलकर जिंदगी की गाड़ी खींच सकें। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब हम लोगों को यहाँ से जाने की इजाजत दी जाए। अब्दुर्रहमान ने कहा, सबसे पहली बात तो यह है कि तुम लोग हम पर बोझ नहीं हो। मुझे अफसोस इस बात का है कि हम तुम्हारी खातिर खा खिदमत नहीं कर सके। फजल इलाही ने कहा, नहीं भाई, खिदमत तो तुम लोगों ने हमारी बहुत की। अल्लाह तुम लोगों को इसकी जजा जरूर देगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, जमीन की फरोख्त से मुझे जो रकम मिली थी वो मेरे पास महफूज है। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मौके की दुकान तलाश करके कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दूं। अब्दुर्रहमान ने कहा, मुनासिब ख्याल है, तो फिर तलाश कीजिए कोई दुकान। अगर मजीद रकम की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। फजल इलाही बोला, नहीं भाई, तुम लोगों का ये एहसान पहले ही क्या कम है। अब्दुर्रहमान की बीवी ने फजल इलाही की बात काट दी। बोली, रहमान ठीक कह रहे हैं भाई साहब, रकम कुछ कम पड़ जाने पर आप बिला तकल्लुफ ले लीजिए, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो लौटा दीजिए। फजल इलाही ने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाऊं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा। दूसरे ही रोज दुकान की तलाश शुरू हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सी दुकानें देखी गईं, लेकिन भाटी चौक पर एक दुकान पसंद आ गई। ये दुकान चौक के कॉर्नर पर वाक़े इमारत के कॉर्नर पर थी। खासी बड़ी दुकान थी और किराया भी माकूल था। फजल इलाही ने उस इलाके का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया कि अगर यहाँ फलों की दुकान खोली जाए तो खूब चलेगी, क्योंकि चौक के आसपास फलों की कोई दुकान नहीं थी। बाज लोग फुटपाथ पर टोकरों में फल लिए बैठे थे। ऐसी जगहों पर आम लोग तो चीज खरीद सकते थे, लेकिन मुअज़्ज़िज़ीन झिझकते थे। इसलिए फजल इलाही ने अच्छे अंदाज में फलों की दुकान खोलने का ही फैसला किया। जमीन की फरोख्त से उसे माकूल रकम मिली थी। दुकान लेने के बाद भी खासी रकम बच गई थी। दुकान के सामने थोड़ी सी जगह घेर कर लकड़ी का ऊंचा थड़ा बना लिया गया था, जिस पर ताजा फलों के टोकरे और पेटियां सजा दी गईं, जबकि अंदर के हिस्से में शेल्फ वगैरह बनाकर शीशे के खूबसूरत मर्तबानों में खुश्क मेवे सजा दिए गए। दुकान की डेकोरेशन ऐसी थी कि गाहक खुद ब खुद खींचा चला आता था। दुकान खूब चल निकली। चंद रोज तो वो अब्दुर्रहमान के घर पर रहे, फिर अंदरून लोहारी एक मकान किराए पर लेकर वहां मुंतकिल हो गए। यहाँ से उन्हें दुकान करीब पड़ती थी। उनकी दुकान खूब चल निकली। उनके ग्राहकों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका शुमार इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन में होता था। फजल इलाही सुबह सवेरे मंडी से माल लेकर आता और दुकान सेट करके शफात के हवाले करके खुद दाता दरबार चला जाता, जो वहां से सिर्फ चंद गज के फासले पर था। उसका ज्यादा वक्त दाता दरबार में ही गुजरता था। लोहारी गेट के अंदर मोहल्ला हवेलियां के कूचा लाला हरनाम दास में जो मकान उन्होंने किराए पर लिया था, वो नान छोले बेचने वाले एक आदमी अमीर अली की मिल्कियत था। वो भाटी चौक पर दुकान लगाया करता था। फजल इलाही से दोस्ती हो गई थी, इसलिए मकान बहुत कम किराए पर मिल गया था। यूं भी अमीर अली का कोई नहीं था। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था और उसे पैसे की हवस भी नहीं थी। उसका बाप क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदुस्तान से हिजरत करके आया था और ये मकान उसने क्लेम में हासिल किया था। पुरपेच और तंग सी गलियों में इस मकान वाली गली तो और भी तंग थी। 3 आदमी पहलू ब पहलू नहीं चल सकते थे। इस मकान के दरवाजे के ऐन सामने गली का मोड़ था। मकान में दाखिले के दरवाजे के साथ ही बैठक का दरवाजा था। मकान के दरवाजे को देखकर यूं लगता था कि मकान अंदर से भी छोटा होगा,
लेकिन अंदर से ये मकान बेहद वसी व अरीज था। दरवाजे के दूसरी तरफ सुर्ख ईंटों का कुशादा आंगन था जिसमें 20-25 चारपाइयां बिछ सकती थीं। सहन के दूसरी तरफ तवील बरामदा था। उस बरामदे में 4 कमरों के दरवाजे थे। बीच में एक राहदारी थी। उस राहदारी में भी कमरे थे। कमरों की तादाद मजमूई तौर पर 8 थी। बड़े कुशादा कमरे थे। फजल इलाही को इतने बड़े मकान की जरूरत नहीं थी, लेकिन कम किराए पर मिल गया था, इसलिए उसने ले लिया। उनके सामने वाले मकान में जहूर नामी एक साहब रहते थे। जहूर भी फजल इलाही का हम उम्र था। वो ब्रैंडरथ रोड पर मशीनरी की एक दुकान पर मैनेजर था। उसकी सारी जिंदगी इसी दुकान पर मुलाजिमत करते हुए गुजर गई थी। वो बहुत खुश अखलाक और हंसमुख आदमी था। जहूर का मकान छोटा था, एक बैठक 2 कमरे, आंगन भी मुख्तसर था। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी ब्याही जा चुकी थी और मिस्री शाह में रिहाइश पजीर थी। बेटा भी शादीशुदा था। वो फजल इलाही के बेटे शफात से उम्र में 3-4 साल बड़ा था और एक बच्चे का बाप था। फजल इलाही इशा की नमाज दाता दरबार में पढ़ने के बाद घर आ जाता, जबकि शफात देर तक दुकान खोले बैठा रहता। भाटी लाहौर का दिल, यूं लगता था जैसे उस इलाके में कभी रात ही न होती हो। रात को भी दिन का समा रहता। मोहल्ले के बाद लोगों ने फजल इलाही के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। इनमें ज्यादा लोग फजल इलाही के हम उम्र थे जो रात देर तक बैठे बातें करते रहते। एक रात जहूर और गली के 3 और आदमी बैठे बातें कर रहे थे। चाय का दौर चल रहा था। बातों ही बातों में शेर मोहम्मद ने शफात की शादी का जिक्र छेड़ दिया। बोला, अरे भाई, बेटे की शादी कब करोगे? अब तो माशाल्लाह तुम्हारा कारोबार भी सेट हो गया है। मेरा तो मशवरा है कि अब शफात की शादी कर ही डालो। बहू घर में आएगी तो तुम्हें भी कुछ आराम मिल जाएगा। एक तरफ बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहना। फजल इलाही ने हंसते हुए कहा, बात तुमने छेड़ी है तो तुम खुद ही उसके लिए कोई रिश्ता भी ढूंढ निकालो। शफात को भतीजा कहते हो, तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है। शेर मोहम्मद ने जवाब दिया, चलो ठीक है। वैसे एक लड़की है मेरी नजरों में, यतीम लड़की है, खूबसूरत और सलीके वाली है। मैं उसके बाप को अच्छी तरह जानता था, बहुत शरीफ आदमी था। अब दोनों माँ बेटी अकेली हैं, आगे पीछे कोई भी नहीं है उनका। फजल इलाही ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम ही बात शुरू करो। इस तरह शफात अली के रिश्ते के लिए सिलसिला शुरू हो गया। वो लोग कछुपुरा में रहते थे। फजल इलाही शेर मोहम्मद के साथ जाकर लड़की भी दिखाया। लड़की उसे पसंद आई। 1 साल पहले उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। उनके 2 मकान थे। एक में उन माँ बेटी की अपनी रिहाइश थी और दूसरा मकान किराए पर उठा रखा था। उसी के किराए से घर के अखराजात चल रहे थे। लड़की की माँ सिलाई का काम भी करती थी, जिससे कुछ आमदनी हो जाती। बात पक्की हो गई और फिर चंद ही रोज के बाद शफात की शादी हो गई। सकीना बड़ी भाग्यवान साबित हुई। उसके आने के 3 महीने के बाद फजल इलाही ने वो दुकान खरीद ली जिसमें वो कारोबार कर रहा था। और फिर सकीना ने जब एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया तो फजल इलाही खुशी से फूला नहीं समाया। उसने पोते का नाम शारिक रखा। शारिक अपनी माँ से भी ज्यादा भाग्यवान साबित हुआ। वो अभी 3 महीने का था कि मकान का मालिक अमीर अली बीमार पड़ गया। पहले तो वो छोटे छोटे डॉक्टरों से इलाज करवाता रहा, लेकिन बीमारी बढ़ती गई और बिलाखिर जब उसने म्यू अस्पताल जाकर मुआयना करवाया तो इंकिशाफ हुआ कि उसके न सिर्फ जिगर में जख्म हो गया था, बल्कि एक गुर्दा भी नाकारा हो रहा था। अमीर अली अकेला आदमी था। उसे पैसे की हवस नहीं थी। कनात पसंद आदमी था। कभी कुछ बचाकर भी नहीं रखता था। जो कुछ बचाया था वो बीमारी पर खर्च होने लगा और बिलाखिर वो अंदोख्ता भी खत्म हो गया। फिर उसने फजल इलाही के हाथ वो मकान बेच दिया। फजल इलाही को वो मकान बहुत सस्ता मिल गया था। फजल ने वो मकान शफात के नाम पर ट्रांसफर करवा दिया। उसके चंद हफ्तों के बाद फजल इलाही सड़क पार करते हुए डबल डेकर बस की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। उसे फौरन म्यू अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन वो जान पर न हो सका और 3 दिन बाद खालिक हकीकी से जा मिला। फजल इलाही के इंतकाल के बाद शफात अली उदास रहने लगा। उसकी बीवी सकीना हौसलामंद औरत थी। वो उसकी ढारस बंधाती रहती थी। शफात ने 65 वाली जंग में हौलनाक मनाजिर देखे थे। सैकड़ों लोगों को खाको खून में लौटते देखा था। अपनी माँ, बहन और भाई की खून में लथपथ लाशें देखी थी। वो खुद भी जख्मी हुआ था। हकीकत तो ये थी कि उसका दिल जख्मों से चूर था। वक्त ने वो जख्म तो मुंतमिल कर दिए थे, लेकिन अब बाप की मौत से दिल पर एक और जख्म लगा था। ये ताज़ा जख्म कुछ अरसे तक तकलीफ का बायस रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी मुंतमिल होने लगा। सामने वाले पड़ोसी ज़हूर से अब भी उनके बड़े खुशगवार ताल्लुकात थे, लेकिन ज़हूर का पोता सलमान, जो उन दिनों BA में ज़ेर तालीम था, कुछ मुख्तलिफ किस्म का इंसान था। अखलाक तो जैसे उसे छू कर नहीं गुजरा था। दूसरों से हमेशा अक्खड़ लहजे में और बदतमीजी से बात करता। उसके बाप ने अगरचे उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन दूसरों के पास कोई अच्छी चीज देखकर वो जलता था। शक्ल में भी वो बहुत बदहैयत इंसान था। गैंडे जैसा बेडोल जिस्म, तंग सी पेशानी और छोटी छोटी आंखें जिनसे मक्कारी झलकती थी, तोते जैसी खमीदा नाक और पीले दांत।
जैसे उसने कभी दांतों की सफाई न की हो। न जाने क्या बात थी कि शफात अली और उसके घर वालों से वो जलने लगा। उनसे कभी उसने सीधे मुंह बात नहीं की थी, कभी सलाम तक नहीं किया था। मोहल्ले के दूसरे लोगों से भी उसका ऐसा ही रवैया था और ये उसकी फितरत के ऐन मुताबिक था। फजल इलाही ने जब ये मकान खरीदा तो सलमान के बाप ने बड़े खुलूस से उसे मुबारकबाद दी थी, लेकिन सलमान ने बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया था। फजल इलाही के इंतकाल के बाद तो वो शफात अली का जैसे दुश्मन हो गया। शफात अली की बीवी सकीना एक सुघड़ और सलीकामंद लड़की थी। उसने घर संभाल लिया, लेकिन फजल इलाही के इंतकाल के बाद वो कुछ बीमार सी रहने लगी। शफात अली ने सकीना और शारिक की देखभाल और घर के कामकाज के लिए एक औरत रख ली। मरियम नामी उस औरत का घर तीसरी गली में था और उसका शौहर तांगा चलाता था और वो खुद घरों में काम करती थी। वो उम्र में सकीना से 2-3 साल बड़ी थी। उसका बेटा पैदाइश के चंद माह के बाद इंतकाल कर गया था और अब अरसे से उसकी गोद खाली थी। शायद यही वजह थी कि वो शारिक पर ज्यादा तवज्जो देने लगी। शारिक भी उससे बहुत ज्यादा मानूस हो गया। मरियम को अगरचे जुज़ वक्ती तौर पर मुलाजिम रखा गया था, मगर सकीना और शारिक से कुछ ऐसा लगाव हुआ कि उसने दूसरे घरों पर काम करना छोड़ दिया और ज्यादा वक्त इसी घर में गुजारने लगी। वो रात को भी देर तक रहती और कभी तो रात भी वहीं गुजार देती। तकरीबन 2 साल के बाद मरियम ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रजिया रखा गया। रजिया की पैदाइश के चंद ही रोज के बाद उसका बाप लक्ष्मी चौक पर एक हादसे में हलाक हो गया। उस वक्त उसके तांगे में सवारियां भरी हुई थीं। वो तांगा लेकर निस्बत रोड से मैकलोड रोड की तरफ जाने के लिए लक्ष्मी चौक पर मुड़ा ही था कि एक तेज रफ्तार ओमनी बस ने तांगे को कुचल दिया। रजिया का बाप और तांगे की 2 सवारियां तो फौरन ही जाम बहक हो गईं और बाकी 4 मुसाफिर, जिनमें 2 औरतें भी शामिल थीं, शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें म्यू अस्पताल पहुंचा दिया गया। मोहल्ले वालों ने मरियम से सिर्फ इतनी हमदर्दी की कि उसके शौहर का जनाजा उठा कर ले गए। 2-4 रोज तक मोहल्ले वालों की तरफ से हमदर्दाना ख्यालात का इजहार होता रहा और फिर लोग उसे भूल गए, मगर सकीना और शफात उसे नहीं भूले थे। सकीना और शफात ने मरियम को मशवरा दिया था कि वो अपना मकान छोड़कर उनके घर मुंतकिल हो जाए, लेकिन वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन बहरहाल उसके तमाम अखराजात शफात ही बर्दाश्त कर रहा था। शारिक और रजिया की परवरिश एक साथ हो रही थी। शफात जो चीज अपने बेटे के लिए लाता वही चीज रजिया के लिए भी लेकर आता। उन दोनों मियाँ बीवी ने मरियम को कभी किसी चीज की कमी या महरूमी का एहसास न होने दिया। उनकी जिंदगी बड़े इत्मीनान और सुकून से गुजर रही थी, लेकिन यूं लगता था जैसे वक्त को उनकी खुशियां पसंद न हों। उनके सामने वाले घर में रहने वाले जहूर का भी इंतकाल हो चुका था। सलमान वकालत का इम्तिहान पास करने के बाद जिला कचहरी में प्रैक्टिस शुरू कर चुका था। कुछ अरसे तक वो एक सीनियर वकील के साथ अटैच रहा, फिर उसने इंडिपेंडेंट होकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसने कचहरी के अहाते में एक फट्टा भी ले लिया था, जहां एक मेज कुर्सी लगा दी गई थी। सलमान निहायत कमीना फितरत आदमी था। किसी के साथ भलाई करना तो उसने सीखा ही नहीं था, अलबत्ता अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में रहता था। वैसे तो उसकी प्रैक्टिस बराए नाम ही चलती थी, लेकिन जाली दस्तावेजात की तैयारी के सिलसिले में वो खासी शोहरत हासिल कर चुका था। उसके पास ज्यादातर ऐसे ही लोग आते थे जो जालसाजी से अपना काम करवाना चाहते थे। सलमान को शफात अली से भी बड़ी परखाश थी। जब ये मकान फजल इलाही ने अमीर अली से खरीदा था तो उसके सीने पर सांप लौट कर रह गए थे। उसे तो इस बात का भी दुख था कि इतना बड़ा मकान अमीर अली के बाप को क्लेम में कैसे मिल गया, और अब सलमान को उनके खिलाफ कुछ करने का मौका मिल गया था। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था और वो खुद भी वकील बनकर जाली दस्तावेजात की तैयारी में महारत हासिल कर चुका था। सलमान ने मुतल्लिका महकमे को यह दरखास्त दे दी कि अमीर अली के बाप ने झूठा क्लेम दाखिल करके ये मकान हासिल किया था, जो बाद में फजल इलाही ने शफात अली के नाम औने पौने खरीद लिया था। इस दरखास्त में उसने ये भी दावा किया था कि ये मकान दरअसल उसके खानदान की मिल्कियत है। उसकी दरखास्त के मुताबिक अरसा पहले उसका अपना मकान और शफात अली वाला मकान दरअसल एक ही मकान था, लेकिन इस तरफ गली निकालने के लिए इस मकान को तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। शफात वाले मकान का हिस्सा मुख्तलिफ लोगों को किराए पर दिया जाता रहा। आखिर में एक हिंदू किराएदार था जो 47 के फसादात के दौरान हिंदुस्तान चला गया और इस मकान पर अमीर अली के बाप ने कब्जा कर लिया और झूठा क्लेम दाखिल करके उसे अपने नाम अलॉट करवा लिया। सलमान ने अपने दावे के सबूत में कुछ दस्तावेजात भी पेश की थी जो जाहिर है जाली थी। केस तवील अरसा अदालत में चलता रहा और बिलाखिर फैसला शफात के हक में हुआ। अदालत के इस फैसले पर सलमान तिलमिला उठा। उसने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी और इस तरह ये केस दोबारा शुरू हो गया। सलमान ने मुतल्लिका महकमे के बददियानत आदमियों से मिलकर उस मकान की मिल्कियत के बारे में कुछ रद्दोबदल भी करवा लिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सलमान की हरामजदगी से केस में पेचीदगी पैदा होती चली गई
اور اس طرح یہ سیدھا سادھا معاملہ الجھنوں کا شکار ہو کر برسوں پر محیط ہوتا چلا گیا۔